Hello student, welcome to chemistry class. Student, in second book we have completed organic chemistry major part, haloalkanes and haloarenes, phenol, ether, alcohol, aldehyde, ketone, carboxylic. Now we are going to start amines. This one is the second last chapter, and after this chapter we will study the biomolecules when your second book will be finished. Okay. In this chapter we will see the amines. What are amines? Amines are derivative of ammonia. Amines are derivative of, you can write here, alkyl or aryls. Derivative of ammonia are known as amines. Known as amines. Okay. These are obtained by replacing one hydrogen. Amines are obtained by replacing one hydrogen from alkyl or aryl compound. ठीक है. एक suppose CH4. This is the CH4. After replacing one hydrogen and adding NH2, it become CH3NH2. This one is methane. Okay, and this one is methenamine. Or you can say general language methylamine. Okay. Amines are also primary, secondary and tertiary. These are also primary, secondary and tertiary, depending upon the number of hydrogen, depending upon the number of hydrogen and alkyl group attached to the nitrogen,
Okay. Alkyl or aryl derivative of ammonia are known as amines. Amines are obtained by replacing one hydrogen from alkyl and aryl compounds like this. Okay, and these are also प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी. ओके, ये भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होते हैं, जैसा हम लोगों ने अल्कोहल में पढ़ा था प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल, वैसे ये भी क्या होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल की तरह से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन होते हैं. ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कितने हाइड्रोजन है और कितने जो है कि एल्काइल ग्रुप है. ठीक है, let's see the example. What are the examples? Examples हम लोग देख लेते हैं. RNH2. This one is the primary amine. Primary amine has one alkyl group, one alkyl group, and two hydrogen. Here is R2NH. This one is secondary amine. Here is two alkyl group, and here is one hydrogen. Okay, and this one is tertiary amine. Here is three alkyl group and no hydrogen. ओके, तीन एल्काइल ग्रुप हैं और कोई भी हाइड्रोजन नहीं. अब ये अमोनिया की तरह से अमोनियम आयन जैसे बनता है वैसे ही अमोनियम साल्ट भी बना सकते हैं. ये क्या बना सकते हैं? अमोनिया. अगर यहाँ पे हमारा R3N है और एक एल्काइल ग्रुप और इसके साथ जुड़ जाए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? अमोनियम. इसके साथ अगर हम RH रिएक्शन करा देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा R4N प्लस X माइनस. ओके, इस तरह से. वन मोर थिंग, अगर सारे एल्काइल ग्रुप जो नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, सारे के सारे एल्काइल ग्रुप अगर एक जैसे हैं, एक साइज के, एक नंबर ऑफ कार्बन के हैं, तो वो सिंपल एमीन की तरह से जाने जाएंगे. इफ ऑल अल्काइल ग्रुप attached to nitrogen of amines are similar, then these are
known as these are known as simple amines. Simple amines, इनको हम सिंपल एमीन्स कहते हैं। अब सिंपल एमीन्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? CH3NH2, CH3 whole twice NH, CH3 whole thrice N। तो यहाँ पे सारे एल्काइल ग्रुप जो है मेथिल है, सारे के सारे क्या है? मेथिल है। तो हम इनको सिंपल एमीन्स कह सकते हैं। तो सिंपल एमीन्स आर दोज एमीन विच हैव सेम टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप, और यू कैन से दैट कि एमीन्स आर सिंपल व्हेन same type of alkyl groups are attached to the nitrogen of amine. These are known as simple amines। लेकिन अगर दो डिफरेंट हो जाए, if two different alkyl group are attached to nitrogen of amine, then such amines are known as mixed amines। इनको हम मिक्स्ड एमाइंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में CH3NH, CH2CH3, ओके, CH3N, CH2CH3 and CH2CH3। ये सब के सब क्या है? मिक्स्ड, क्योंकि एल्काइल ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट है। ये क्या है? मेथिल, ये क्या है? एथिल, दिस वन इज एथिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल मेथिल एमीन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल एमीन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? ये है मेथिल, ये है एथिल, और ये है प्रोपिल। क्या है? प्रोपिल। ठीक है, तो इसका अगर हम नेमिंग, जनरल नेमिंग लिखेंगे तो क्या होगा? एथिल मेथिल प्रोपिल एमाइन। ओके, क्या होगा? प्रोपाइल एमाइन। दीज आर द मिक्स्ड। When two different alkyl groups are attached to the nitrogen of amine, then such amines are known as what? Such amines are known as mixed amine. Such amines are known as mixed amine. Okay, it is clear? Okay.
Now we'll see the structure of amines. What we will see? अब एमीन्स का स्ट्रक्चर जो होता है अमोनिया की तरह से होता है, एकदम से लाइक अमोनिया। ओके, एमीन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो लाइक अमोनिया होता है। इट्स स्ट्रक्चर इज लाइक अमोनिया, चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अमोनिया का ये स्ट्रक्चर है। ओके, ये एक हाइड्रोजन है सॉलिड वेज में, एक यहाँ पे इस तरह से है बॉन्ड में, और एक इस तरह से। ये हमारा हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप हुआ। ये कार्बन क्या है, नाइट्रोजन क्या है, sp3 हैब्रिडाइन। ओके, यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp3। ओके, लेकिन इसका जो शेप हो जाएगा, शेप वो पिरामिडल हो जाएगा, क्योंकि हम जब शेप लेते हैं तो ये जो भूतू दिख रहा है इसको नहीं लेते। ये क्या है, लोन पेयर, आँख मत समझ लेना, ये लोन पेयर है। ठीक है, ये तुम्हें देख रहा है, ये क्या है, लोन पेयर। ओके, ये पिरामिडल यहाँ पे शेप हो गया। यहाँ पे बॉन्ड एंगल अगर हम देखेंगे दो के बीच में, किसी दो के बीच में 1 लेस देन 107, लगभग 107 होता है। ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल इज लेस देन 109 डिग्री, 109 से कम होता है। अब सेम यही कंडीशन किसके साथ है, एमाइन के साथ है। 1 लोन पेयर CH3 एल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन, ओके, और ये हाइड्रोजन। यहाँ पे एंगल 107 डिग्री हम ले सकते हैं, और यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे बॉन्ड पेयर, यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, और टोटल हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। अब इसका भी शेप जो होगा, शेप पिरामिडल होगा, पिरामिडल। ओके, इसका शेप क्या होगा, पिरामिडल होगा। यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल 109 से क्या है, कम है। ठीक है, ओके, तो ये हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लिया, दोनों लगभग सेम है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है। ये बॉन्ड एंगल जो यहाँ पे बॉन्ड एंगल लेस देन 109 डिग्री, दैट इज इक्वल 100, कहीं 8 दिया हुआ, कहीं 7 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्यों है,
ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन. This is it visible? No, it is not visible. Then you can write here this, you can write here this is due to loan pair bond pair repulsion. लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन. ओके, तो यहाँ पे हमने ये देख लिया. जो ये एंगल कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि क्यों बॉन्ड एंगल इतना कम हो जाता है, 109 नहीं होता है, जबकि यहाँ पे तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है. तो एक लोन पेयर की वजह से यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो रिपल्सन होता है वो ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है. तो इस रिपल्सन की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाता है. ठीक है, तो हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया कि यहाँ पे ये नाइट्रोजन sp3 एमिडाइज है, पिरामिडल स्ट्रक्चर है, बॉन्ड एंगल कम है. क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है. ओके, तो जितने भी एमाइंस होंगे, ऑल एमाइंस have a lone pair इलेक्ट्रॉन. सबके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है. ये अमोनिया के बेसिक नेचर को डिफाइन करता है. किसको डिफाइन करता है? अमोनिया के बेसिक नेचर को डिफाइन करता है. अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे हम ये देखेंगे नॉमेनक्लेचर. ओके, ट्राइबल नेम तो हो जाएगा एल्काइल एमीन. लेकिन ये तो हो गया ट्राइबल नेम. IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC ये हो जाएगा एल्केनामाइन. अल्केन में से E हटा करके प्लस एमाइन अगर ऐड कर देंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा अल्केनामाइन. बहुत सिंपल नेमिंग है इसका, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. क्या हुआ फिर एक बार और पढ़ लेते हैं. ठीक है, सपोज कि हमारे पास है CH3NH2. ओके, तो हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन है वो क्या ट्राईवैलेंट है. क्या है? ट्राईवैलेंट. ठीक है, अब इसका नेम करेंगे तो मीथेना. इसके अकॉर्डिंग एक कार्बन को मीथेन बोलेंगे, मीथेना माइन. ओके, अब यहाँ पे CH3CH2NH2 है तो इसको हम इथेना माइन करेंगे. लेकिन इथेना माइन अगर कंडीशन ऐसी हो कि CH3CH2NH CH3 लिखा हो. ठीक है, अब इसका नेमिंग करना है तो कैसे करेंगे? इसका नेमिंग करने के लिए हम यहाँ पे पहले इसको लिखेंगे. जो बड़ी चेन होगी वो तो पेरेंट हो जाएगी. बड़ी वाली चेन क्या हो जाएगी? पेरेंट हो जाएगी. बड़ी वाली चेन पेरेंट हो जाएगी और छोटी वाली चेन ब्रांच हो जाएगी. तो इसका नेमिंग बहुत थोड़ा अलग तरीके से करते हैं. चूँकि ये CH3 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो लिखेंगे N मेथिल. ओके, अब ये पूरा क्या है? इथेनामाइन.
ओके 1N एथिल इथेनामाइड। एन हमने क्यों यूज़ किया? क्योंकि ये ब्रांच किसी कार्बन से नहीं जुड़ा है बल्कि नाइट्रोजन से जुड़ा है। ब्रांच किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से, ना कि कार्बन से। कुछ और नेमिंग देख लेते हैं। ओके, थोड़ा सा जैसे कि हमने स्ट्रक्चर बना लिया, और यहाँ पे हमारा है CH3 CH2 CH2NH2। अब इसका नेमिंग करना है NH2। तो अब इसका नाम क्या होगा? अब चूंकि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो स्ट्रेट चेन के साथ जुड़ा हुआ है, तो अब ये तो हमारी पैरेंट चेन हो गई, पैरेंट चेन, और ये हमारी हो गई ब्रांच। तो अब इसको कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, लिखेंगे 2 फेनिल, 2 फेनिल। अब यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन, ये इसका नाम है। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाता कि ये हमारा रिंग है, इसके पास NH यहाँ पे लिखा होता C2H5 और लिखा होता है CH3, तो इसका नेमिंग क्या करते हैं? इसका नेमिंग करते वक्त ध्यान में रखते हैं कि ये जो N है, इस N से दो चीज़ें जुड़ी हुई है। एक तो हमारा CH3 जुड़ा है, एक हमारा CH2। इस CH3 को हम मेथिल बोलेंगे, ये हमारा मेथिल है, और ये हमारा एथिल है, और ये हमारी पैरेंट चेन है। ये क्या है? पैरेंट। एक बार फिर से सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी जब नेमिंग करेंगे तो लिखेंगे N एथिल, फिर कॉमा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे N मेथिल, ठीक है। अब ये पूरा जो हमारा पैरेंट है इस नाइट्रोजन के साथ बेंजामाइन हो जाएगा, बेंजामाइन, ये हो जाएगा बेंजामाइन, ठीक है। इस तरह से हम इसका नेमिंग करते हैं। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कि अच्छा, इसका नेमिंग आप लोग खुद करिए, देखिए क्या हम ले रहे हैं आपको, ठीक है। हमारे पास है ये, हमारे पास है। अब इसका नेमिंग क्या करेंगे? इसका नेम क्या होगा ज़रा बताइए, तो बताइए यहाँ पे इसका नेम क्या होगा। अब किसी एक को हम पैरेंट मान लेंगे। सपोज हमने इसको पैरेंट मान लिया, पैरेंट। अब ये हमारा यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे ब्रांच हो गया, ये भी ब्रांच हो गया, ये भी ब्रांच हो गया। तो नेमिंग करते वक्त क्या लिखेंगे? इस ब्रांच को फेनिल लिखेंगे, फेनिल। तो इसका नेम हो जाएगा N एथिल, N फेनिल, बेंजामाइन, ठीक है। इस तरह से हम लोग नेमिंग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नेमिंग हमने कंप्लीट कर लिया।
बहुत सिंपल नेमिंग होती है। अब इसके बाद हम लोग कल की क्लास में प्रिपरेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन। तब तक के लिए आप लोग जो है घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई में मन लगाइए।